Good evening, Assalamu alaikum, dear students. Today is the second lecture of narration or direct indirect. Once again, I say you that please watch all the videos of the tennis. Now I will repeat whatever I have already repeated, whatever I have already narrated in the lecture number 1. But here, with the help of the chart, as you know that it is my habit to repeat with the help of the chart. But once again, before repeating, please take a few seconds with me. This is what you know that it is my channel, free of cost education channel, and it is known to you that its name is Salim Sir's Academy English for All. And I always say that there are separate playlists for JKSSB, JK Bose, Kashmir University, as well as for Jammu University, and important literature. But once again, those who have not still subscribed, they will subscribe, and you have to share with all, and you have to watch all the videos. Also, you have to remember that some of you says me, sir, how to subscribe the channel? We are not able to subscribe it. You have to do nothing. You have to go in the YouTube, and in the YouTube you have to write my name. My channel is named Salim Sir's Academy. After going there, there will come the page like this, and there is subscribe. Here you have to make the subscribe, and also then you have to write your comments. For example, this is a lecture. Here, lecture number 35. When you will display it, when you will see, then there comes the comments also. There you have to write the comments. I hope that you will do this. Now we are going to start. It is second lecture. It is very easy because now I have to explain you with the help of the chart. I hope that it will be easy for you. As I have already told you that direct and indirect speech, I told you that direct speech indicates the actual expression or words of the speaker. And there are actual words, whatever he has said, I have told you this already. Indirect indicates the reported expression, words of the speaker, and whatever you will say in your own words. Now there are some rules. There is also the examples, but I will not explain the usage. You will see the usage yourself then. That is, it is examples. I will explain only the rules, because then the lecture becomes large and then students becomes bored. You can take the screenshots also. Then you will see because I have already explained this. It is nothing. Rule number 1. Reporting verb in the present or future tense remains unchanged. बहुत आपको मैंने पहले भी कहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में, इस वक्त कोई चेंज नहीं आ रही है किसमें, टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच की. ये एग्जांपल है, ये आप खुद ही करेंगे आप. हाँ, इसी तरह दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसिंग ए यूनिवर्सल ट्रूथ और हैप्चुअल फैक्ट इज नॉट चेंज्ड. इसी तरह मैंने आपको कहा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मतलब स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, तो या कोई फैक्चुअल हैबिट होगा, फैक्ट होगा, हकीकत होगी, तो उस वक्त भी वहाँ कोई टेंस चेंज नहीं आ रही है. ये है एग्जांपल्स, आप खुद देखेंगे क्योंकि हमने ये किया है पहले ही. और कुछ चेंजेस अब हैं. द सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस आर नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस. आपको मालूम है, हम तो पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं, मगर अगर ये चीज़ होगी तो उस वक्त हमें टेंस चेंज नहीं करनी है. क्या क्या? ए पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट. अगर पास्ट में कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा तो उस वक्त भी हमें कोई टेंस चेंज नहीं करनी है. एन इम्प्रॉबेबल कंडीशन, कोई कंडीशन जो मतलब प्रॉबेबल नहीं होगी, वहाँ भी नहीं करना है. ए पास्ट हैबिट और कस्टम, जो आपका कस्टम या हैबिट होगा पास्ट में, वहाँ भी नहीं करनी है. या टाइम क्लॉजेज या टाइम की क्लॉजेज, यहाँ ये एग्जांपल्स है. मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही करेंगे. इसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे या आप फिर पॉज करेंगे. यहाँ है एग्जांपल, ये वाली पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट की, ये वाली है पास्ट हैबिट और कस्टम, और ये है क्लॉज की.
आपको खुद समझ में आएगा। फिर अगर नहीं भी आएगा तो कोई परवाह नहीं है, हमें फिर भी पढ़ना है इसको फिर से। रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू प्लस नाउन या प्रोनाउन इज चेंज्ड इनटू टोल्ड इन द स्टेटमेंट। जो आपको मैंने पहले भी कहा है, अगर सेड टू होगा और उसके बाद कुछ होगा तो उस वक्त हमें ये करना है टोल्ड में। अगर खाली से होगा या टेल होगा और उसके बाद टू या ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस वक्त वो वही का वही रह रहा है। मिसाल के लिए यहाँ है, एग्जाम्पल यहाँ है, आप ये खुद भी कर सकेंगे क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ वही। अदर verbs like reply, answer, inform, state may be used instead of said or told in the statement। अगर स्टेटमेंट वाले होगी तो अगर वहाँ सीधे होगा, मतलब टू वो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट लिखना है, रिप्लाई लिखना है, आंसर लिखना है, इन्फॉर्म लिखना है, स्टेट लिखना है। मिसाल यहाँ है, आपको समझ में आएगा, या एग्जाम्पल है, आप खुद ही करेंगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ। इसी तरह दैट is used as connecting word in reported speech in statements। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि दैट हम इस्तेमाल करते हैं, मगर कहाँ करते हैं, जब स्टेटमेंट सेंटेंस होगी। स्टेटमेंट में आपको कहा है कि जिनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ है एग्जाम्पल, आप ये खुद देख सकेंगे। इसी तरह है द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी टर्न्ड इनटू स्टेटमेंट इन रिपोर्टेड स्पीच। मिसाल अगर इंटरोगेटिव वाला होगा, कोई क्वेश्चन वाला होगा, जब आप उसको चेंज करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन शक्ल में नहीं होना चाहिए, उसको आपको स्टेटमेंट शक्ल में लाना पड़ेगा। यानी कि वायर ऐसा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन तरफ नहीं होना चाहिए। वो हमें तो WH वर्ड्स लिखने हैं, मगर वो ऐसे ही लिखने हैं कि उनकी सेंस नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव फिर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये है रूल नंबर 8, दैट इज़ नॉट यूज्ड विथ। इनके साथ दैट इस्तेमाल नहीं होता है। जब ये होंगे उस वक्त हम दैट इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन कौन? हु होगा, हुज, होम होगा, हुज होगा, वाट होगा, विच होगा, व्हेन होगा, दे होगा, वायर होगा, हाउ होगा। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उस वक्त हम दैट इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब ये हो गए, यानी कि इनको हम WH7 और हाउ कहते हैं, ये 7 WH वर्ड्स हैं। जब ये होंगे तो उस वक्त हम दैट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ भी इसके एग्जांपल हैं। फिर से मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। मैं भी आपको ये अपने स्क्रीनशॉट मतलब आपको उठाना होगा। आप इसे भी उठा सकेंगे। मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद और कुछ रूल्स हैं, उनको भी देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा साफ नहीं है, तब तक हम पहले ये देखेंगे। नहीं, इससे पहले हम ये देखेंगे। ये वाला ज़रूर पुटिंग। तो मैं किया है, ये क्या है, ये अब ये है, ये आपको याद रखना है। द प्रिंसिपल्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। यानी कि कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज। बहुत आसान है। द कंजक्शन दैट इज़ यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट, मगर स्टेटमेंट और एक्सक्लेमेशन में। यानी कि दैट हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। खालिस स्टेटमेंट यानी कि सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, हैरानिया में जो आपको मैंने पढ़ाई थे। इफ़ इज़ यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हो गए मगर इनडायरेक्ट, यानी कि जो WH से नहीं स्टार्ट होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं वर्ब से, कैन से, इज से, आर से। इसी तरह WH वर्ड इज़ यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट। अगर WH वर्ड वहाँ हो गए तो फिर वही लिखना है। टू और नॉट टू इज़ यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट कमांड। अगर कमांड होगी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, तो वहाँ आपको टू या नॉट टू इस्तेमाल करना है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं।
इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस। अगर पास्ट टेंस में, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इस वक्त कोई चेंज नहीं है, अलबत्ता अगर पास्ट में होगा तो उस वक्त चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस ये हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट उठाएंगे, ये बहुत काम आपके आएंगे। ये इससे पहले भी हमने पढ़ा था, नाउ देन, हियर देयर, दिस दैट, दीज दोज, दस सो। इसी तरह टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, एगो बिफोर। तो अब ये है टेंस चेंज, ये भी हमने पढ़ा था तो फिर भी पढ़ेंगे। बहुत आसान है। सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको पहले भी कहा है, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, अब बता, अगर पास्ट सिंपल होगा वो पास्ट परफेक्ट में, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और यहाँ आपको थोड़ा याद रखना है, ये इससे आपको मतलब है कि अगर स्टेटमेंट वाले होंगे, स्टेटमेंट के साथ हम सेट टू के बदले दैट इस्तेमाल करते हैं और कंजक्शन दैट इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ इसके एग्जांपल हैं, ये भी आप देख सकेंगे। इसी तरह अगर इंटरगेटिव वाले होंगे तो यहाँ हम सेट टू के बदले आस्क लिखते हैं और ये कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, हु, वायर, हाउ मनी एटसेट्रा। और ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर इंटरगेटिव वर्ब्स होगी यानी क्वेश्चन वाले, तो उस वक्त हम आस्क, ये सेट टू के बदले आस्क इस्तेमाल करते हैं और कंजक्शन इफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये इसके एग्जांपल। इसी तरह इंपरेटिव में आपको मालूम है वहाँ ऑर्डर होता है, रिक्वेस्टेड होता है, एडवाइस होता है। तो इसमें हमें मतलब शेयर को चेंज करना है और यहाँ हम कंजक्शन के बदले टू या नॉट टू इस्तेमाल करते हैं। ये है इसके एग्जांपल्स। इसी तरह अगर एक्सक्लेमेटिव होगा तो वहाँ हम एक्सक्लेमेट लिखते हैं। इसी तरह वहाँ हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं इसके एग्जांपल्स। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये वाला थोड़ा शायद साफ नहीं आया है, ये फिर से देखेंगे लास्ट पर। पहले हम ये करेंगे, बहुत आसान है। यानी कि अगर स्टेटमेंट वाले होंगे यस नो, यानी कि जिनको हम इंटरोगेटिव में मतलब जिनका आंसर आ रहा है यस या नो में, अगर पहले ऐसे भी याद रखेंगे आप, अगर स्टेटमेंट हो गया, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट हम सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, वहाँ कुछ नहीं करना है। रिपोर्टिंग वो अगर में लिखना है सेज या टेल्स होगा और कंजक्शन दैट इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। इसी तरह अगर यहाँ इंटरोगेटिव होगा, मतलब जिनका आंसर होगा यस नो में, वहाँ आस्क्स और वहाँ हम इफ़ करते हैं इस्तेमाल। ये हैं इसके एग्जांपल, आप खुद भी देख सकेंगे। ये बहुत आसान है। अगर WH वाले होंगे, मतलब वाई, वाट, हु, हुज से, तो इस वक्त WH वर्ड से लिखने हैं मगर वो एज कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं। देखो यहाँ, राम सेज कुमार वायर आर यू गोइंग, राम आस्क्स कुमार वायर ही इज़ गोइंग। फिर हमने नोट ऑफ इंटरगेशन नहीं लिखा है क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा है। इसी तरह इंपरेटिव में वहाँ रिक्वेस्ट्स लिखना है, ऑर्डर्स लिखना है, एडवाइस लिखना है या इंक्वायरीज लिखना है और हमें इन्फिनिटिव टू या नॉट टू इस्तेमाल करना होता है। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकेंगे। इसी तरह एक्सक्लेमेटिव में हम एक्सक्लेम्स लिखते हैं और हम दैट यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये है एग्जांपल। मुझे लग रहा है कि ये बहुत आसान है, आपको अब आएगा। मुझे लग रहा है आप तो इतना ही, क्योंकि एक्चुअली क्या, जिस वक्त मैं अब ये लेक्चर दे रहा हूँ इस वक्त 10:47 है, तो इसीलिए अब लेट भी हो रहा है। तो फिर से मैं आपको चैनल के लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो यूट्यूब पर जाएंगे। यूट्यूब पर आपको कुछ नहीं लिखना है, सलीम सर्स एकेडमी लिखना है, वहाँ से ऐसे पे जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ सब्सक्राइब करना है और यहाँ जब वीडियोज़ आप देखिए वहाँ आप कमेंट्स लिखेंगे और मुझे उम्मीद है आप शेयर भी करेंगे। ये बहुत आसान है, आप खुद यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे करना है तो आप शेयर भी कर सकेंगे यहाँ, तो या ऐसे भी आप शेयर कर सकेंगे यहाँ। तो ये बहुत आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फीडबैक भी लिखेंगे। यू विल हेल्प मी। ओके, थैंक्स।
सेकंड, तो ये हो गया। हाँ, मुझे उम्मीद है आप